अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इसराइल यरगमाली वापस न आए तो मशी के उस्ता जहन्नुम बन जाएगा। ट्रंप ने दी एक बार फिर धमकी। हमास ने सिफारत की जबान इस्तेमाल करने के बारे में ट्रंप को याद दिलाया। कनाडा, क़यामत तक अमेरिका में जम नहीं होगा। जस्टिन ट्रूडो का ट्रंप को करारा जवाब। कनाडा की असल ताकत को नहीं समझ सके ट्रंप, हुकूमती वज़रा ने भी दिया बयान। गजा के रिहायशी इलाकों पर इसराइली हमले जारी, मजीद 40 फलस्तीनी हुए शहीद। फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। एलोन मस्क दुनिया के अमीर तरीन शख्स करार। अमेरिका की मशरिकी और जुनूबी रियासतों में बर्फ का तूफान, लाखों अफराद बिजली से महरूम, हजारों परवाजें मंसूख। और लॉस एंजलिस के मज़ाफाती इलाके में आधी जदगी, 3000 एकड़ तक फैली आग, 30,000 अफराद को घर छोड़ने की हिदायत। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में मौजूद इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए एक बार फिर हमास को वार्निंग दी है। फ्लोरिडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि उनके इक़्तिदार संभालने तक यरगमाली अगर वापस न आए तो मशी के उस्ता जहन्नुम बन जाएगा। ट्रंप ने कहा यह हमास के लिए अच्छा नहीं होगा, बल्कि किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इससे पहले ट्रंप के बयान पर हमास के रहनुमा उसामा हमदान ने ट्रंप को सिफारती ज़बान इस्तेमाल करने का मशवरा दिया था। वाज़ेह है कि ट्रंप ने गुज़िश्ता माह भी धमकी दी थी और कहा था कि उनकी हलफ बर्दारी से कबल यरगमाली रिहा ना हुए तो मशी के उस्ता को जहन्नुम भुगतना होगा। नौमुंतखब अमेरिकी सदर ने कहा इस सब के जिम्मेदारों को ऐसा सबक दिया जाएगा जैसे पहले कभी अमरीकी तारीख में नहीं दिया गया था। Steve Witkoff, who's just got back from the Middle East, and he's done a fantastic job. He's a great deal maker. I said, what we need there is a deal maker, because nobody makes a deal. We have people that understand where the rivers are and where the meets and bounds are, but they can't talk. They can't make deals. Steve's done a great job. I just want to thank you, Steve. You've been working endlessly for months, and he's working specifically on the hostages, trying to get them back. Steve, come up for a second. Maybe you might want to say a couple of words. Sir, I didn't know Steve was going to be here, actually. Neither did I. He's done a fantastic job, and it's a dangerous job, too, and we appreciate it. He didn't know about this kind of danger and the other deal-making he does. Now he sees a lot of big danger. Come on up, Steve. If they don't release the You know what that hostages, means, don't you? Well- Do I have to define it for you? Look, all No, I know hell you're not will gonna break out. telegraph If what- those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. Can you elaborate? And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. I don't have to say anymore, but that's what it is. And they should have given them back a long time. They should have never taken them. There should have never been the attack of October 7th. People forget that. But there was, and many people are killed. They're no longer hostages. I have people from Israel and others calling, begging me to get, we had also people there from the United States, just so you know. They're holding some so-called hostages from the U.S. But I've had mothers come to me and fathers crying, can I get the body of their son back? Can I get the body of their daughter back? That beautiful girl where they threw her in the car, pulled her by her ponytail and threw her in the car like she was a sack of potatoes. I said, what happened to her? Sir, she's dead. Like a 19, 20-year-old beautiful girl, and the way they treated her. And I just say it this very simply. Steve's got a job to do. He's a great guy, great negotiator, great person. They respect him over there already. It's what we needed over there. We have people that know everything about the Middle East, but they can't speak properly. They don't know. He's a great negotiator. That's what I needed. I could have sent that gentleman right over there, Hussein. He's a great negotiator. There are people, they're rare. Great negotiators are very rare, like a great surgeon. But we have the right person. But I tell this, I don't want to hurt the negotiation.
If the deal isn't done before I take office, which is now going to be 2 weeks, all hell will break out in the Middle East. कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका के नवमुंतखब सदर ट्रंप को करारा जवाब दिया और कहा कनाडा क़यामत तक अमेरिका में जम नहीं होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वो कनाडा के खिलाफ इक़्तिसादी क़ुव्वत इस्तेमाल करेंगे और कनाडा को अमेरिका की 91वीं रियासत बना लेंगे। कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा ने भी कहा ट्रंप का बयान इस बात का इजहार है कि उन्हें समझ ही नहीं कि कनाडा की असल ताकत क्या है और कनाडा कभी धमकियों के सामने नहीं झुकता। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप को करारा जवाब देते हुए कहा कनाडा क़यामत तक अमेरिका में जम नहीं हो सकता। On either of those two, but I can say this: we need them for economic security. The Panama Canal was built for our military. I'm not going to commit to that now. It might be that you'll have to do something. Look, the Panama Canal is vital to our country. It's being operated by China. China. And we gave the Panama Canal to Panama. We didn't give it to China. गजा के रिहायशी इलाकों पर इसराइली हमले जारी हैं जिसमें गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। इसराइली फ़ौज ने शुमाली गजा में 2 फ़ौजियों की भी हलाकत की तस्दीक की है। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज का ऑपरेशन जारी है जिसमें हमास कमांडर समेत 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, जबकि इसराइली अहलकारों ने फ़लस्तीनियों के मकानात और गाड़ियों को आग लगा दी। और दूसरी जानिब यूएई के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली हम मनसब से राबिता किया जिसमें गजा में इंसानी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन रोम में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात करेंगे जिसमें शाम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जहां बशर अल-असद की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया है। अमेरिकी महकमे ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने ऐलान किया है कि ब्लिंकन इटली और वेटिकन के सरकारी दौरे के दौरान अपने यूरोपीय हममनसबों से मुलाकात करेंगे। 9 जनवरी को इटली की मेज़बानी में होने वाले इजलास में बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के अलावा अमेरिका और मेज़बान मुल्क के वज़ीर ख़ारजा भी शिरकत करेंगे। अमेरिका के नवमुंतखब सदर ट्रंप ने नेटो अरकान से मुतालबा किया है कि वो अपने दिफाई अखराजात के हदफ को मौजूदा 2% से बढ़ाकर जीडीपी के 5% तक ले जाएं। ट्रंप ने नेटो के इत्तेहादियों पर अमेरिकी ताउन पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करने पर भी तनकीद की। इसने पहले अरकान पर अपनी माली जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए दबाव डालने के लिए क्रेडिट का दावा किया और ये कहते हुए कि उनके अंदाज ने नेटो को बचाया है। Well, you can't do it at 2. I mean, at 2%, every country, if you're going to have a country and a regular military, you're at 4%. I think they should be, they're in dangerous territory. I think it should be, they can all afford it, but they should be at 5%, not 2%. I'm the one that got them to pay 2%. Provide a security guarantee if they do enter into an armistice or a ceasefire. A big part of the problem was Russia for many, many years, long before Putin said you could never have NATO involved with Ukraine. Now, they've said that. That's been like written in stone. And somewhere along the line, Biden said, no, they should be able to join NATO. Well, then Russia has somebody right on their doorstep, and I could understand their feeling about that. But there were a lot of mistakes made in that negotiation. And when I heard the way that Biden was negotiating, I said, you're going to end up in a war. And it turned out to be a very bad war. And it could escalate. That war could escalate to be much worse than it is right now. They had a deal which would have been a satisfactory deal to Ukraine and everybody else, but that Biden said, no, you have to be able to join NATO. And that's always been, and nobody knows more about NATO than I. Years ago when I first started this, I didn't know too much about NATO, but I got it right anyway. I said they're taking advantage. I'm the one that got, and the Secretary General was here, as you know, 2 weeks ago, saying that if it weren't for me, NATO wouldn't even exist right now, because I raised from countries that weren't paying their bills. At that time, 28 countries, 20 of them were not paying their bills, 21 to be exact. They weren't paying, or they were paying a very small portion. And I raised over $680 billion, that was the number he gave, by saying, if you don't pay, we're not going to protect you. And as soon as I said that, the money came pouring in. But Obama could have said it. Other people could have said it. Bush could have said it. Nobody said it but me. Nobody said it but me. I took a lot of heat. They said, oh, that's a threatening statement. Well, they weren't paying their bills. I said, we're not going to protect you if you're not paying the bills. So
in a true sense, I saved NATO, but NATO's taken advantage of us. Thank you very much. ट्रंप ने पनामा कैनाल का कंट्रोल वापस लेने और डेनमार्क के ज़ेरे कंट्रोल ग्रीनलैंड को हासिल करने की ख्वाहिश का वाज़े इजहार किया। नौमुंतखब अमरीकी सदर ने इसके लिए फौजी या इख्तिसादी कार्रवाई को भी मुस्तरद नहीं किया। पेश नाज़रीन तफसीलात इस खास रिपोर्ट में। डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा कैनाल का कंट्रोल वापस लेने और डेनमार्क के ज़ेरे कंट्रोल ग्रीनलैंड को हासिल करने की ख्वाहिश का वाज़े इजहार कर दिया है। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ने इसके लिए फौजी या इख्तिसादी कार्रवाई को मुस्तरद नहीं किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ट्रंप से पूछा गया कि आया वो ग्रीनलैंड और स्ट्रेटेजिक पनामा कैनाल का कंट्रोल हासिल करने के लिए अस्करी या इख्तिसादी दबाव इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उन्होंने दो टोक अल्फाज में जवाब दे दिया, मैं आपको इन दोनों में से किसी के बारे में भी यकीन दहानी नहीं करवा सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हमें इख्तिसादी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनकी ज़रूरत है। यह गैर मामूली बयान ऐसे वक्त आया है जब ट्रंप ने 20 जनवरी को वाशिंगटन में अपने ओहदे का हलफ उठाने से 2 हफ्ते कबल तोसी पसंदाना एजेंडे का खाका पेश किया। ट्रंप ने खलीज मैक्सिको का नाम बदलकर खलीज अमेरिका रखने का भी अज़्म का इजहार किया और मैक्सिको और कनाडा पर अहम टैक्स आयद करने के अपने वादे को भी दोहराया। उन्होंने कहा, ये बहुत सारे इलाके पर मुहित है, खलीज अमेरिका कितना खूबसूरत नाम है। खलीज का नाम तब्दील करने के उनके वादे ने शुमाली अमेरिका की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी डेनाली का नाम बदलकर माउंट मैककेनल करने की यादें ताज़ा कर दी हैं। साबिक़ सदर ओबामा ने मुकामी अमेरिकियों की मुखालिफत के बावजूद अलास्का के इस पहाड़ का नाम तब्दील कर दिया था। आमतौर पर अमेरिका का बोर्ड ऑफ जियोग्राफिक जोग्राफाई नामों का तयन करता है, हालांकि कई अमेरिकी सूबों ने एग्जीक्यूटिव अहकाम के जरिए भी जोग्राफियाई खसूसियात का नाम बदला था। ट्रंप ने इस बात का अदा किया है कि पनामा कैनाल की खुद मुख्तारी मौज़ूए बहस नहीं है। पनामा के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सदर ने मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है कि हमारी नहर की मुख्तारी पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। पनामा के सदर ने ट्रंप के बयान को बकवास करार दे दिया। ट्रंप ने दिसंबर में भी एक बयान में चीन के फौजियों को क्रिसमस की मुबारकबादी देते हुए कहा था कि वो मोहब्बत से लेकिन गैर कानूनी तौर पर पनामा नहर को चला रहे हैं। चीन अमेरिका के बाद पनामा कैनाल का दूसरा सबसे बड़ा सारिफ है और वस्ती अमेरिकी मुल्क में एक बड़ा सरमायाकार भी है। ट्रंप ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर इसराइली हमाली मेरे मनसब संभालने तक वापस नहीं आए तो मशीक़ उस्ता में क़यामत बर्पा हो जाएगी और ये हमास के लिए अच्छा नहीं होगा। ट्रंप ने अपने एलची को खिताब करते हुए कहा, मैं आपके मुज़ाकरात को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिकी नौमुंतखब सदर ट्रंप के इस ख्याल को भी मुस्तरद कर दिया कि वो कनाडा को 91वीं अमेरिकी रियासत बनाने के लिए मौशी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा, हमारे दोनों ममालिक में वर्कर्स और कम्युनिटीज एक दूसरे के सबसे बड़े तिजारती और सिक्योरिटी पार्टनर होने का फ़ायदा उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज मालदीव के वज़ीर दिफा मोहम्मद गस्सान मामून के साथ दिल्ली में वफ्द सतह पर बातचीत की, जहां उन्होंने माली के तरक्याती मंसूबों और दिफाई साजो सामान की फराहमी में हिंदुस्तान की गैर मशरूत हिमायत का अदा किया। वाज़ेह रहे कि मामून आज से हिंदुस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर है ताकि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में पिघलाव के दरमियान मज़ीद गहरा किया जा सके। हिंदुस्तानी वज़ीर दिफा ने नोट किया कि मालदीव के सदर के दौरे ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को एक नया रुख फराहम किया है और दौरे के दौरान जारी करदा मुश्तरका विजन दस्तावेज दोनों ममालिक के लिए रहनुमाई असूल के तौर पर काम करता है। अमेरिकी रहनुमाओं ने साबिक़ सदर जिमी कार्टर को खैर तहसीन पेश किया, जिन्होंने तारीख में सबसे तवील और सबसे ज़्यादा काबिल सदारत ओहदा संभाला था। आज आखिर रसूमात से कबल अमेरिकी कैपिटल में उनके जसद खागी को लाया गया था। कांग्रेस अरकान और सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद जजेस कार्टर के झंडे वाले ताबूत के गिर्द कैपिटल गुंबद के नीचे जमा हो गए थे। कई लोगों ने 39वें सदर के तौर पर कार्टर के इक़दामात और 1981 में ओहदा छोड़ने के बाद कई दहाइयों तक इंसानी हमदर्दी के कामों की खूब पजीराई की। बांग्लादेश ने साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद का पासपोर्ट मंसूख कर दिया है। यह फैसला ढाका में अबूरी हुकूमत की जानिब से किया गया है, जिसकी सरबराही नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत की जानिब से मुल्क में मुजरिमाना कार्रवाइयों के पेश नज़र जुमला 97 अफराद के पासपोर्ट मंसूख कर दिए गए हैं, जिनमें साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना भी शामिल है। इन अफराद में से 22 पर जबरी गुमशदगियों में मुबैना मुलविस होने के इल्ज़ाम हैं, जबकि 75 दीगर अफराद पर गुज़िश्ता साल बांग्लादेश में तलबा के एहतजाज के दौरान कत्ल के इल्ज़ाम हैं। वाज़ेह है कि इन दिनों हसीना वाजिद हिंदुस्तान में पनाह ले चुकी हैं।
अमेरिकी जरीदे फोर्ब्स ने दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त को जारी कर दिया है। अमेरिकी जरीदे की जानिब से दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में टॉप 3 पर एलोन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जकरबर्ग शामिल हैं। फोर्ब्स की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में एलोन मस्क दुनिया के अमीर तरीन शख्स करार पाए हैं, जिनकी मजमूई दौलत 442 अरब डॉलर से तजाविज़ कर गई है। तो फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में एलोन मस्क के बाद जेफ बेजोस दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने सन 1994 में ई कॉमर्स की बड़ी कंपनी अमेज़न की बुनियाद रखी थी। मेटा के बानी मार्क जकरबर्ग दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात में तीसरे नंबर पर हैं, जबकि लेरी एलिसन चौथे नंबर पर हैं। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस के मज़ाफ़ाती इलाके में मौजूद जंगलात में लगने वाली आग तेज हवाओं के बायस 3000 एकड़ तक फैल गई है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस के मज़ाफ़ाती इलाके पैसिफिक पैलिसीड्स में लगने वाली आग मुसलसल फैलती जा रही है। 10 एकड़ पर लगने वाली आग तेज हवाओं के बायस अब 3000 एकड़ तक फैल गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजी से आग फैलने के बाद लॉस एंजलिस में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। 30,000 अफराद को गाँव को छोड़ने की हिदायत कर दी गई है। तेज हवाओं और फैलती आग के बायस इस वक्त लॉस एंजलिस में 46,000 घर और कारोबार बगैर बिजली के चल रहे हैं। एक जानिब आग तो दूसरी जानिब अमेरिका की मशरकी और जुनूबी रियासतों को बर्फ के तूफान का सामना है, जबकि कंसास सिटी में बर्फबारी का 32 साल रिकॉर्ड टूट गया है। टेक्सास से गल्फ कोस्ट तक दर्जे हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। मेजोरी और कंसास में होने वाले हादसात में 6 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि वाशिंगटन, मेरीलैंड, वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया, कैंसास, मिसूरी, केंटकी और आर्कनसास में हंगामी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बर्फ के तूफान के बायस 2 लाख से भी ज्यादा अफराद बिजली से महरूम हो गए हैं, जबकि 2000 से ज्यादा परवाजें मंसूख कर दी गई हैं। 9000 ताक़ीद का शिकार चल रही हैं। उधर बरतानिया में भी शदीद बर्फबारी और सैलाब का अलर्ट बरकरार है। इंग्लैंड और वेल्स में सैलाब की 500 वार्निंग जारी की गई हैं। लंकाशायर और लेस्टरशायर सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर है। सैलाब की वार्निंग के बायस यॉर्कशायर, नॉर्थ ईस्ट स्कॉटलैंड में स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। मुतअद्दिद ट्रेनें मंसूख कर दी गई हैं। परवाजें भी ताख़ीर का शिकार हो गई हैं। मुख्तलिफ हिस्सों में बर्फबारी आज भी जारी रहने का इम्कान है। सऊदी अरब के शहर मक्का में भी मूसलाधार बारिशों के नतीजे में सैलाबी रेले नुकसान का सबब बने हैं और मुतअद्दिद इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। मक्का के मुतअद्दिद इलाकों में सख्त और दरमियानी दर्जे की शिद्दत वाली बारिशों का ऐलान कर दिया गया है। निकासी आब में रुकावट के सबब शहर की शाहराओं गलियों में जमा सैलाबी पानी मोटरसाइकिलों और कारों को बहा ले गया है। शहर की बाज़ दुकानात और कारोबारी जगहों में भी पानी भर गया है। ताहम कोई जानी नुकसान के बारे में तफसीलात नहीं जारी की गई है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब कौमी महकमे मौसमियात ने मक्का में मूसलाधार बारिशों के साथ साथ शदीद बादी झक्कड़ों और ज़ालाबारी की पहले ही पेशगोई कर दी थी। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इस्राएली यरगमाली वापस न आए तो मशरिक़ वस्ता जहन्नुम बन जाएगा। ट्रंप ने दी एक बार फिर धमकी। हमास ने सिफात की ज़बान इस्तेमाल करने के बारे में ट्रंप को याद दिलाया। कनाडा क़यामत तक अमेरिका में जम नहीं होगा। जस्टिन ट्रूडो का ट्रंप को करारा जवाब। कनाडा की असल ताकत को नहीं समझ सके ट्रंप, हुकूमती वज़रा ने भी दिया बयान। गजा के रिहायशी इलाकों पर इसराइली हमले जारी, मजीद 40 फलस्तीनी हुए शहीद। फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। एलोन मस्क दुनिया के अमीर तरीन शख्स करार। अमेरिका की मशरिकी और जुनूबी रियासतों में बर्फ का तूफान, लाखों अफराद बिजली से महरूम, हजारों परवाजें मंसूख। और लॉस एंजलिस के मज़ाफ़ाती इलाके में आतिश ज़दगी, 3000 एकड़ तक फैली आग, 30,000 अफराद को घर छोड़ने की हिदायत। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।